हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम। राम बीती हुई हिस्ट्री नहीं, हमारा वर्तमान है। वर्तमान हमें बताता है कि क्यों शस्त्र के बिना धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। कोई युद्ध करता है, इसीलिए हम ध्यान कर पाते हैं। कोई सीमा पर शस्त्र धारण करता है, इसीलिए हमारी धर्मशाला में धर्म नाच रहा है। ध्यान और युद्ध अलग नहीं किए जा सकते। योग और युद्ध भी अलग नहीं किए जा सकते। योग की सभ्यता जीवित है, क्योंकि आदि योगी न केवल महान योद्धा हैं, बल्कि हथियारों के सबसे बड़े सप्लायर माने जाते हैं। किसी काल में इस स्थान पर नर और नारायण दो महामानव रहा करते थे। एक तप करता था, दूसरा उसकी रक्षा के लिए युद्ध। काल व्यतीत हुआ, उसी नर नारायण ने पुनः जन्म लिया। यहीं पर आकर नारायण अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तप करने लगे। नर भी दिव्य शस्त्र पाने के लिए आदि योगी का ध्यान करने लगा। एक भयानक युद्ध सर पर आ गया। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर क्या अधिकार है? एक स्त्री का ये साधारण सा प्रश्न उलझा हुआ सा जान पड़ा। भरी सभा में राजघराने की बहू की इज्जत लुट रही थी और दार्शनिक ये सोच रहे थे कि धर्म क्या है, क्या नहीं। विशेषज्ञों में जब सामान्य समझ नहीं होती तो विनाश छाता है। ये कौन है जो समर के बीचों बीच खड़े हैं? ये बद्रिका आश्रम वाले नर और नारायण है। महाभारत के लेखक महर्षि व्यास ने उस समय की तारागणों की स्थिति का वर्णन किया है। कई पुराण और राजतरंगिणी जैसे ग्रंथ भी महाभारत का काल लिखते हैं। आज से 1400 साल पहले ये लेख लिखा गया है। ये कहता है कि ये जैन मंदिर रवि कीर्ति ने महाभारत युद्ध के 3735 वर्ष बीतने के बाद बनवाया है। राजा युधिष्ठिर के राज्याभिषेक से शुरू हुआ युधिष्ठिर संवत आज भी भारत में कहीं कहीं चलता है। आर्यभट्ट के अनुसार युद्ध की तिथि 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व है। At least in 5th century we are very clear that it was before something like 3600 years. Today the Yugabda will be something like 5000 plus or something. युद्ध से पहले बड़े बड़े योद्धाओं ने अपने विशाल फेफड़ों में हवा भरकर भयानक रूप से विशाल शंख बजाए थे। आकाश एक भयानक ध्वनि से थर्रा गया और इस तरह एक काल चक्र में युगांत हो गया। Because one of the main themes of Mahabharata, as Iravati Karve emphasized this, it is Yuganta. It specifically says that the olden days are gone. This is how it has been told in the Yamayami Sukta of Rigveda also. That agata gachan uttara yugani, there are new days which are going to come up. So Mahabharata comes at a stage when the old practices which are told as dharma, they have become obsolete and therefore new dharmic practices have been told. And therefore to emphasize this particular ethical point of view, naturally so many stories have been not deliberately added. They have come, I would say, automatically within it, as though Vyasa or his Shishyas are inspired to tell those stories. Mahabharata is all that and plus so many things. This ethical point of view is very important because Mahabharata, there are so many ideals which have been put forth and crushed. The best ideal is Krishna. He says to Arjuna that, well,
You should not hesitate at this particular point. You kill Karna first of all, because he represents adharma. So don't give an excuse to him to fight with him, and let not adharma prevail over dharma. And therefore dharma is to kill adharma. So there is a new wave of dharma which is coming in. The Shrauta dharma is gone and Agama dharma is coming. That has been told in the Narayaniya Parva. So this is the new dharma which is to be. So the old dharma is to be set aside, it is to be respected, but the new dharma has to take its place. So this is the kernel of Mahabharata, and the essence of the whole thing is the Bhagavad Gita. It has been told to you in different ways through different stories. You have to understand it properly. And that is why Mahabharata is worked upon for the last so many centuries. Mahabharata is not a story which has gone away. It is to be dramatized in a foreign language for 8 hours through a drama, where the European spectators were virtually pinned to their chairs. Because there is something which is coming from within. It is not a simple story, a fancy or a romantic tale or something like that. It is the ethical code of conduct and kernel of the life of the Indian, the very essence. That is why Tijan Bai, who is a Chhattisgarhi woman, I have heard her before she became a great thing. I had gone for excavations at Nagra, a place near Gondia, and during Shivaratri she had come. It was fascinating, dancing and taking the role of different characters and inculcating. So in the Chhattisgarhi language, so it is not Sanskrit. ये शंख परिचय देता है काल चक्र के वलयों का। धरती अपने काल के वलय ऐसे ही बना रही है, वह अपने पथ पर कभी दोबारा नहीं जाती। हम सब इस माँ की गोद में बैठकर अनंत आकाश में वलय बनाते हुए नित्य नए पथ पर अग्रसर हैं। नया पथ और नया सृजन, यही काल की सच्चाई है। काल की गति एक रेखीय नहीं है जैसा कि हिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है। काल चक्रीय है। हर चक्र में नया रामायण और नया महाभारत होता है। यही इतिहास है। इतिहास बीती हुई हिस्ट्री नहीं है, सदा वर्तमान है। ये दृश्य पिछले 5000 सालों से नहीं बदला है। आज भी आदि जनता चीर हरण करने वालों के साथ खड़ी होती है। आज भी कई बुद्धिमान लोग भारत माँ को बेइज्जत करने वालों के साथ खड़े होते हैं। यहाँ नर लड़ने से पहले ही हार मान चुका है। जब तक 5 गांवों की मांग का जवाब ये ना आ जाए कि सुई की नोक तक नहीं मिलेगी, लड़ते नहीं है। सोचेंगे आखिर दुर्योधन भी हमारा भाई है, हमारी उदारता और कष्ट देखकर उसका हृदय बदल जाएगा। हृदय परिवर्तन का शौक गांधी जी को परंपरा से मिला था। दुष्टों के हृदय परिवर्तन की आस में अपना जीवन खपा देना भारतीय हिंदू मानव की बहुत पुरानी व्याधि है। ये पहली बीमारी है। अपराधियों को दंड देने के लिए उकलाते हैं, लेकिन जब दंड देने का समय आता है तो भावुक हो जाते हैं। भ्रष्टाचारियों को जब जेल होने लगती है तो हृदय में ममता फूट पड़ती है। ये दूसरी बीमारी है। अपनी कायरता को उदारता समझना, ये तीसरी बड़ी बीमारी है। इन तीन बीमारियों से ग्रस्त मानव जीवन की छोटी सी लड़ाई नहीं जीत सकता। उस युद्ध की तो बात ही क्या जिसमें प्रतिद्वंदी कर्ण और भीष्म है। ज्योतिषियों ने पांडवों की हार की भविष्यवाणी की है। नर के सारे लक्षण हार के ही हैं। वह मैदान छोड़ने को तैयार है। ऐसी ही मनस्थिति के कारण भारतीय भविष्य में हारते रहे। लेकिन आज भारत को हारने देगा कौन? बगल में जगदीश खड़े हैं।
भारत के इतिहास की वो भी क्या घड़ी थी जब भाग्य की रेखाओं को पुरुषार्थ ने मिटा के रख दिया। भारत में सबसे बड़ा हट योग हट है, इसीलिए विजय तो वहीं है जहां योगेश्वर हैं। आज भी इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से उनकी आवाज उठ रही है। उठो भारत, साधु मत बनो, भारत माँ कौरव समुद्र में डूब रही है। उठो भारत। ऐसा नहीं है कि ये राजा लोग आगे नहीं रहेंगे, शरीर बदल बदल कर आएंगे। कितनी सही बात कही थी। भारत को शस्त्रों से काटने वाले और आग में जलाने वाले शरीर बदल बदल कर आते गए और बचाने वाले भी आते ही गए। इसलिए भारत की आत्मा मरी नहीं। आत्मा अवध्य है और शरीर तो वैसे भी नहीं बचेगा। अगर तू आत्मा को मरने वाली मानता है तो भी चिंता मत कर, क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। कई प्रचलित दर्शनों के द्वारा समझाया कि युद्ध करो, फिर अंत में ये भी कहा, मैंने गूढ़तम ज्ञान तुझे दे दिया है, इसे संपूर्णता से विचार करके तू जैसी इच्छा हो वैसा कर। ऐसे होते हैं भारत में भगवान, कभी डराते नहीं। प्रारंभ में स्वतंत्रता देते हैं और अंत में भी मुक्त ही करते हैं। पतंजलि ने कह दिया कि जिसको जैसा अभिमत हो वह वैसा ही ध्यान करके सात्विक एकाग्रता को प्राप्त कर सकता है। सबको अनेक योग विधियां उपलब्ध है, कोई भी सत्य को प्रत्यक्ष कर सकता है। इसीलिए हिंदुओं में कम्यून नहीं बने। हिंदू कम्युनल नहीं है, किताब का बंधन नहीं है। यहाँ कई है जो वेद किताब के बिना ज्ञानी हो गए। कई योगियों ने कह दिया कि भगवान है ही नहीं। किसी ने कहा कि भगवान की छोड़ो, संसार ही नहीं है, बस मैं ही मैं हूं। लेकिन भारत ने किसी मंसूर को फांसी नहीं दी। यहाँ किसी सुकरात को जहर नहीं पीना पड़ा। उल्टे अनेक बौद्धों को वैदिक सुजाताओं ने खीर खिलाकर अमृत के द्वार पहुंचा दिया। पेड़ों की छाह थकान हर लेती है, पेड़ों की संगति बड़ी शांति देती है, मन स्थिर होता है। पतंजलि ने स्थिरता और सुख को आसन कहा है। वृक्ष ही वे जीव हैं जो सदा आसनस्थ हैं। जिनका आसन छूटा उनको चैन नहीं। आदमी पूरी दुनिया में बेचैन दौड़ता है। एक स्थान पर रहते हुए भी ये वृक्ष हवाओं के साथ नाचते हैं, मेघों के साथ झूमते हैं। सृजन आनंदमय है, उत्सवमय है, रसमय है। इसका प्रमाण वृक्षों से अधिक कौन देगा। वृक्ष हमारे भोग और योग दोनों के संगी हैं। वृक्ष नवयौवनाओं के मृदुल पाद प्रहारों के लिए तरसते हैं। युवतियों की लीलाओं से भंग होकर कृतकृत्य होते हैं। सालभंजिकाएं भारतीय सभ्यता में सौंदर्य का शिखर मानी गई है। वृक्षों के ऊर्ध्वगामी प्राण प्रवाह को योगी अपने भीतर पाना चाहते हैं। प्राचीन भारतीय संसार से पलायन के लिए वनगमन नहीं करते थे, वे तो इन ऊर्ध्वगामी संतों की संगत के लिए वन जाया करते थे। महान साधक सिद्धार्थ ने अनेक वर्षों तक कठोर साधनाएं की। जब सफलता नहीं मिली तो इस वृक्ष की शरण में आ गए। प्रदक्षिणा की, नमन किया, तने से पीठ सटाकर आसनस्थ हो गए। निश्चय किया कि चाहे प्राण चले जाएं, अंतिम सत्य को जाने बिना हे वृक्ष तेरा आश्रय नहीं छोड़ूंगा। दिन ढला, काले बादलों वाली घोर अंधेरी रात आई। सिद्धार्थ अचल चित्त बैठे रहे।
अचानक मन की नकारात्मक शक्तियों ने अर्थात मार की सेना ने आक्रमण किया। कहा, सिद्धार्थ तुम मरने वाले हो। सिद्धार्थ ने कहा, प्रमत्त बंधु मुझे जीवन की तृष्णा नहीं। वे अविचलित रहे, वृक्ष की तरह ही। वृक्ष की अचल उपस्थिति का एहसास था। मार ने पुनः कहा, उठो, मैं बैठूंगा यहाँ। यहाँ वही बैठ सकता है जो पुण्यशाली हो, महादानी हो। जाओ पहले दान करके पुण्य कमाओ। बोधिसत्व ने दृढ़तापूर्वक कहा, मैंने पूर्व जन्मों में बहुत दान किया है। क्या प्रमाण है? चीवर से दाहिना हाथ निकाला और नीचे की ओर संकेत करते हुए कहा, ये महापृथ्वी साक्षी है। मार उल्टे पैरों भाग गया। बोधिसत्व की आस्था देखकर, दृढ़ निश्चय देखकर वृक्ष प्रसन्न हो गया। वह लाल अंकुरों की वर्षा करने लगा। भगवान को सबसे पहले पूर्व जन्मों का और फिर प्रत्युत समुत्पाद का ज्ञान हुआ। सहस्त्रार में तो चांदनी फैली ही, बाहर भी गगन में पूर्ण शशिबिंब ने नमस्कार किया। प्रातः जब स्वर्णिम सूर्य किरणों का अभिषेक हुआ तो ऐसा लगता था जैसे बोधि वृक्ष ने प्रवालों से भगवान की पूजा की है। पहले बोधिसत्व ने वृक्ष की पूजा की, अब बोधि वृक्ष ने भगवान की पूजा की। भारतीय सभ्यता की कहानी प्रकृति और मनुष्य में परस्पर पूजन की कहानी है, उपभोग की नहीं। भारतीय आज भी उस वृक्ष को पूजते हैं। वहां पर आज ये मंदिर खड़ा है। I often wonder why a temple was built at the place of enlightenment of Buddha. Was it to remember or commemorate the great event? While talking of temples, I cannot help but think about the very purpose of these huge structures. I mean, were they just a place of worship? Or did they carry a deeper spiritual meaning that has now been overshadowed by rituals? Now that is a question I must find the answer to. हाँ, तन राम का मंदिर, साधु भाई काया राम का मंदिर। अरे इना मंदिर की शोभा प्यारी, इना मंदिर की शोभा प्यारी, शोभा जब है सुंदर, साधु भाई तन राम का मंदिर। It is not just religion. Don't push them aside as religion. It is the desire to maintain the highest form of civilization. A tree is a temple. A flower is a temple. A fruit is a temple. According to Hindu tradition, the human body itself is temple. देहो देवालय प्रोक्तो। हाँ, तन राम का मंदिर, साधु भाई काया राम का मंदिर। घन क्षेत्र, प्रिज्म और पिरामिड बहुत सभ्यताओं में मिलते हैं, परंतु वक्र शिखर का सौंदर्य केवल भारत की सभ्यता में मिलता है। भारतीय वास्तुकार ने ज्यामिति और प्रकृति के संयोग से सौंदर्य का अद्भुत रसायन तैयार किया है। ये सुमेरु के 5 शिखर तो हैं, परंतु पर्वत की चोटियां है या कमलों की बंद कलियां, रसिक सोचता ही रह जाता है।